Hello everyone, online classes, class 8th, subject science, chapter 10, reaching the age of adolescence, किशोरावस्था की और in the previous chapter you have learnt how animals reproduce. It is only after growing up to a certain age that human being and many other animals can reproduce. Why can humans reproduce only after a certain age? पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि जंतु किस प्रकार से जनन करते हैं और मानव एवं बहुत सी अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं? इन दिस चैप्टर you will learn about changes that take place in the human body after which a person become capable of reproduction. इस अध्याय में हम आप मानव के शरीर के में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिसके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाते हैं। In chapter 9 you have learned about human reproductive organ. Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. चैप्टर 9 में आप मानव जनांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क बनता है। एडोलेसेंस एंड पुबर्टी, किशोरावस्था एवं यौवनारंभ। बूझो वाज celebrating his 12th birthday after his friends left Bhujo and Paheli began catching with their parents. Paheli studied in an all-girls school. She started laughing. She remarked that many of Bhujo's school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained that the boys had grown up. अब बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बूझो और पहेली अपने माता पिता के साथ बात करने लगे। पहेली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूझो के कई मित्रों जिनसे वह एक वर्ष बाद मिली थी की लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई है। उनमें से कुछ तो मूछे आने से जोकर कार्टून नजर आ रहे हैं। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। Growth began from the day one is born, but upon crossing the age of 10 or 11 there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable. The changes taking place in the body are part of growing up. They indicate that you are no longer a child but are on the way to becoming an adult. वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। हमें इस बात का संकेत देता है कि अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवावस्था में कदम रख रहे हैं। Growing up is a natural process. The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. Adolescence began around the age of 11 and lasts up to 18 or 19 years of age. Since this period covers the
13 to 18 or 19 years of age. Adolescents are also called teenagers. In girls, adolescence might begin in a year or two earlier than in boys. Also, the period of adolescence varies फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वृद्ध एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणामस्वरूप जनन परिपक्वता आती है। किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन मतलब 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। The human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty. The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. Puberty ends when an adolescent reach reproductive maturity. किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत देते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों में जनन क्षमता का विकास। किशोर के जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनावस्था समाप्त हो जाती है। चेंजेस एट पुबर्टी, यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन। इंक्रीज इन हाइट, लंबाई में वृद्धि। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंजेस ड्यूरिंग पुबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स elongate and make a person tall. लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबाई अस्थियों की अर्थात हाथ और पैरों की अस्थायी हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. The rate of growth in height varies in different individuals. Some might grow suddenly at puberty and then slow down, while others might grow gradually. अब प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौवनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में वह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। There is no need for पहली to vary. All parts of the body do not grow at the same rate. Sometimes the arms and legs of hand and feet of adolescent look oversized and out of proportion with the body, but soon the other parts catch up and result in a proportionate body. पहली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर में सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते हैं। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family member. This is because height depends on the genes inherited from parents. It is, however, very important to eat the right kind of food during these growing years. This helps the bones, muscles, and other parts of the body get adequate
nourishment for growth. You will find nutritional needs of adolescent discussed later in the lesson. आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार के संतुलित आहार आवश्यक है। यह स्थायी पेशियों एवं शरीर के अन्य कुछ भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता प्रदान करता है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे। चेंज इन बॉडी शेप, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। हैव यू नोटिस दैट बॉय इन योर क्लास हैव बॉर्डर shoulders and wider chest than boys in junior classes? This is because they have entered the age of puberty when shoulders generally broaden as a result of growth in girls. The region below the waist become wider. अब आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा में छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि वह यौवनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं। जब वृद्धि के कारण कंधे फैल जाकर चौड़े हो जाते हैं तो लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स, दस चेंजेस occurring in adolescent बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियाँ लड़कियों की अपेक्षा स्पष्ट एवं गठित दिखाई देती हैं। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। वॉइस चेंज, स्वर में परिवर्तन। डिड यू नोटिस दैट समटाइम द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक as puberty the voice box or the larynx began to grow? Boys develop larger voice boxes. The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat. अब क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा में कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है? यौवनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों में स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। कार्ड एडम्स एप्पल इन गर्ल्स, द larynx is hardly visible from the outside because of its small size. Generally girls have a height pitches voice. Reverse boys have a deep voice. In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice becomes hoarse. This state might remain for a few days or week, after which the voice becomes normal. आपने लड़कों के बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के समान की और सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। कंठमणि, लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से समानता दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्चत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों बाद अथवा कुछ सप्ताहों तक बनी रहती है, जिसके बाद स्वर समान हो जाता है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सेबेक्सस ग्लैंड्स, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। ड्यूरिंग पुबर्टी द सिक्रेशंस of sweat gland and sebaceous gland, oil gland, increase. Many young people get the pimples on the face at this time because of the increased activity of these gland in the skin. किशोरावस्था में श्वेत एवं तैल ग्रंथि में स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों में अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे में फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, जनन अंगों का विकास। लुक अप
figure 9.1 and 9.3 of the previous lesson, which show sex organ of humans at puberty. Male sex organ like the testes and penis develop completely. The testes also begin to produce sperm in girls. The ovaries enlarge and egg begin to mature. Also, ovaries start releasing mature egg. आपने पिछले चैप्टर में 9.1 और 9.3 में दर्शाए गए डायग्राम और उसके बारे में पढ़ा होगा। मानव जननांगों का पुनर्लोकन कीजिए। यौवन प्रारंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण में शुक्राणु का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में अंडाणु का निमोचन में भी प्रारंभ हो जाता है। रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। एडोलेसेंस इज आल्सो ए पीरियड ऑफ चेंज इन ए person's way of thinking. Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. Intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. Sometimes, however, an adolescent might feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. But as adolescent learners, you should know that there is no reason no feel insecure. These changes are a natural part of growing up. किशोरावस्था व्यक्ति की सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अथवा स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक संचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वह सोचने विचारने में काफ़ी समय लेता है। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ दिखता है, स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने के कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है और जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। थैंक यू।